Students, hope you all doing well. I, Dinesh Rawat, would be a faculty for the subject International Business. And the topic for today is International Trade Theories. So, previous lecture में हमने international trade के बारे में पढ़ा था and the difference between domestic and international trade. So, अब हम थोड़ा international trade की theories discuss करेंगे इस lecture में. So, what are the different theories जो international trade में हम पढ़ते हैं? So, let's start. So पहले आप देख सकते हैं these are the two books from where the material of this PPT has been made. So first is your International Business book, which is written by Sinha and Mittal, and second is your International Business Environment book written by P. Subbarao. So international trade theories की अगर हम बात करें, so trade is the concept is of exchanging goods and services between two you can say entities. So or two people. And international trade is when you exchange goods and services between two different countries. So people and entities trade because they believe that they benefit from the exchange. तभी आप ट्रेड करेंगे या तभी कोई भी कंट्री होगी या कोई भी दो लोग हैं या दो एंटिटीज हैं या दो कंट्रीज हैं when there is a benefit then only they would trade. So international trade theories are simply different theories to explain international trade. सो क्यों इंटरनेशनल ट्रेड कोई कंपनी करती है या कोई कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड करती है. सो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज जो हैं वो आपको हेल्प करती हैं इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए. सो पहले हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म. सो इस थ्योरी में जो मेन फोकस था दैट वाज द कंट्रीज वेल्थ वाज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर होल्डिंग्स. एंड इसमें जो मेन प्रमोशन रहता था दैट वाज प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट. सो मेन इसमें फोकस ये था कि किसी भी कंट्री को अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है और अपने इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना है. मतलब इंपोर्ट बहुत कम होने चाहिए एंड एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, और जो भी वो एक्सपोर्ट करेंगे उसके जो रिटर्न में दैट इज उनका जो अमाउंट ऑफ गोल्ड और सिल्वर होल्डिंग होनी चाहिए वो बहुत इंक्रीज होनी चाहिए उसकी वजह से. So the objective of each country was to have a trade surplus. Trade surplus क्या होता है? जब आपका export value of export is much greater than the value of import. So that was the main objective of any country. जब हम बात कर रहे हैं theory of mercantilism में. So it was based on the notion that government should become involved in transfer of goods between nation in order to increase the wealth of each national entity. So wealth was defined, however, as accumulation of precious metals, especially gold. So consequently, the aim of the government was to facilitate all exports while limiting import. So that was the aim of the government. सो इस कैसे करते थे फैसिलिटेट? या तो वो सब्सिडी दे देते थे एक्सपोर्ट के लिए, सो दैट इज सब्सिडाइजिंग द डोमेस्टिक एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज जो भी थी एक्सपोर्ट उसको सब्सिडीज दे देते थे. एंड जो आपकी इम्पोर्ट जो भी आपका इम्पोज ड्यूटीज थी इम्पोर्ट पे वो ड्यूटीज लगा देते थे जिससे इसका इम्पोर्ट कम हो जाए कंट्री का एंड एक्सपोर्ट्स बढ़े. सो जो फ्लॉ की बात करें हम, अगर हम बोलें कि क्या फ्लॉ थी थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म में, so the first was the incorrect belief that the old and precious metal have intrinsic value. So when actually they cannot be used for either production, gold cannot be used for production or consumption. And second fallacy, that is the second flaw, is the theory of mercantilism ignores the concept of production efficiency through specialization. So ये किसी जैसे हम कहते हैं कि एफिशिएंसी को कोई वेटेज नहीं देता था ये. एंड स्पेशलाइजेशन, अगर किसी कंट्री में कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है, कोई लेबर बहुत ज़्यादा है या फिर उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को भी वेटेज नहीं देते थे. सेकेंड थ्योरी की बात करें तो हम आते हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज. सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एडम स्मिथ. इस थ्योरी में क्या फोकस था? दैट इज प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशिएंटली देन another nation. So the theory focus on the ability of a country to produce a good more efficiently than any other nation. अगर आप कोई प्रोडक्ट efficiently प्रोड्यूस कर सकते हैं तो आप उस कंट्री को वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए rather than वो बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें. सो अगर हम बात करें
एंड इस थ्योरी में एडम स्मिथ ने ये भी फोकस रखा था, ही स्टेटेड दैट ट्रेड शुड फ्लो नेचुरली अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस। सो गवर्नमेंट को कोई एक्सपोर्ट को अलग से इंक्रीज नहीं करना है या फिर सब्सिडीज नहीं देनी है, और इम्पोर्ट को कोई उस पर ड्यूटीज नहीं लगानी है। सो लेट इट बी जैसा है, एंड नेचुरली जो मार्केट फोर्सेस है वो उसको फिर लीड करेंगी। सो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इन अ हाइपोथेटिकल टू कंट्री वर्ल्ड, लेट सपोज कंट्री ए है could produce a good cheaper और faster than country B। अगर कोई कंट्री ए कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है जो उसकी कॉस्ट भी कम है और फास्टर प्रोड्यूस कर रही है, देन कंट्री ए हैव द एडवांटेज एंड कुड फोकस ऑन स्पेशलाइजिंग ऑन प्रोड्यूसिंग दैट गुड। तो उस कंट्री ए को वो वाला गुड बनाना चाहिए। सिमिलरली अगर कंट्री बी, जो कंट्री बी इज प्रोड्यूसिंग अनदर गुड, सो देन इट शुड स्पेशलाइज ऑन प्रोड्यूसिंग दैट गुड। सो जिसमें आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, आपको वो वाला जो प्रोडक्ट है या जो गुड है वो आपको प्रोड्यूस करना चाहिए। सो दिस थ्योरी स्टेटेड दैट अ नेशन वेल्थ शुड नॉट बी जज by how much gold and silver it had, rather by the living standards of the people। so wealth अगर आप डिटरमाइन करना चाह रहे हो किसी नेशन का, so आपको अमाउंट ऑफ गोल्ड या सिल्वर चेक नहीं करना है, आपको लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल के थ्रू यू कैन डिटरमाइन द नेशंस वेल्थ। नेक्स्ट थ्योरी हम करते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। जो ये थर्ड थ्योरी है, सो इट वाज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। सो डेविड रिकार्डो वाज एन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट। सो इन्होंने ये थ्योरी दी थी। सो जो हम अभी तक हमने दो थ्योरी पढ़ी, दैट इज मर्केंटिलिज्म एंड थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। सो द चैलेंज टू एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी वाज दैट some countries may be better at producing both the goods। so क्या पता कोई कंट्री में वो दोनों गुड्स को बहुत अच्छे तरीके से या चीपर प्रोड्यूस कर सकती है। सो देन क्या होगा, देन क्या ट्रेड होना चाहिए कंट्रीज के बीच में। सो जब ये हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गया था, तो देन डेविड रिकार्डो ने टू आंसर दिस चैलेंज ही केम अप विद दिस थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। अब इस थ्योरी में क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज अकर्स व्हेन अ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट मोर एफिशिएंटली देन द अदर कंट्री। सो हाउएवर इट कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट बेटर और मोर एफिशिएंटली देन इट डज अदर गुड्स। अगर हम इसको एग्जांपल से देखें, सो लेट्स सपोज देयर इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सो मिरांडा इज अ वॉल स्ट्रीट लॉयर who charges $500 per hour for a legal service। It turns out that Miranda can also type faster than the administrative assistant in her office। So उनके ऑफिस में पहले तो जो लॉयर है उसकी जो फीस है पर आवर की, दैट इज $500, और वो टाइपिंग भी बहुत अच्छा करती है और वो अपने असिस्टेंट से बेटर टाइपिंग करती है। जो असिस्टेंट उनसे पैसे लेता है मिरांडा से, दैट इज $40 पर आवर। सो लेकिन क्या मिरांडा को दोनों काम करने चाहिए? अगर वो दोनों काम करेंगे तो जो वो टाइम टाइपिंग में लगाएंगे वो उनको कम अर्न करके देगा रादर देन जो उनकी फीस है। सो इवन दो मिरांडा क्लियरली हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो हमने सेकंड थ्योरी डिस्कस करी थी, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। सो उसके हिसाब से उनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन वो दोनों काम अगर करेंगे तो देन लॉस में रहेंगे वो। सो बेटर है कि उनको अपनी कंसल्टेंसी ही कंटिन्यू करनी चाहिए। एंड इवन दो मिरांडा क्लियरली हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ स्किल सेट, शुड शी डू बोथ जॉब्स? No, for every hour Miranda decide to type instead of do legal work, she would be giving up $460 in income। So क्योंकि उनको $40 बस इनकम होगी, so $460 का लॉस होगा अगर वो दूसरा काम भी करती हैं। So her productivity and income will be highest if she specializes in the higher paid legal service and hire the most qualified administrative assistant who can type fast। So by having both Miranda and her assistant concentrate on their respective tasks, their overall productivity as a team is higher। So this is comparative advantage। So जरूरी नहीं है कि आप दोनों प्रोडक्ट को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों प्रोडक्ट करने की जरूरत है। आप जिस प्रोडक्ट को मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बनाइए rather than producing both the products।
So this is theory of comparative advantage. So first was theory of mercantilism, जिसमें फोकस था आपका एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करिए, theory of mercantilism, एंड इम्पोर्ट को कम करिए, एंड गोल्ड्स में आपको अपने वेल्थ नेशन को डिटरमाइन करना है, जो अमाउंट ऑफ गोल्ड है. देन वी कम टू थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, कि जहां पर आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है उस प्रोडक्ट को आप बनाइए. लेकिन कभी कभी दो प्रोडक्ट में कंट्री की एफिशिएंसी ज्यादा है, लेकिन क्या आपको दोनों बनाने चाहिए? तो उसको आंसर करने के लिए थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जिस प्रोडक्ट को आप मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को आप करिए. सो बेस्ट यू कैन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. नेक्स्ट फोर्थ थ्योरी वाज theory that was factor proportion. इसको factor proportion theory भी कहते हैं, and we also call it Heckscher-Ohlin theory. So यहाँ पर इस थ्योरी में क्या मेन है? The theory of Smith and Ricardo, जो हमने previous theories पढ़ी हैं, that is comparative and absolute, did not help countries determine which products would give a country an advantage. So still there was some confusion, and at the beginning of 1900, two Swedish economists, that is Elie Heckscher and Bertil Ohlin, focused their attention on how a country could gain comparative advantage. So by producing products that utilize factors that were in abundance in the economy. So आपके पास अगर कोई फैक्टर है, जैसे फैक्टर कैसे, प्रोडक्शन फैक्टर की बात करें, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. अगर आपके पास लेबर बहुत एक्सेस में है, मतलब उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो आपको वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने चाहिए जिसमें वो लेबर का ज्यादा यूज है. सो इसलिए हम इसे कहते हैं फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑल्सो. सो मेन फोकस जो था दैट वाज प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स दैट यूटिलाइज फैक्टर्स दैट वर इन अबंडेंस. So agar you can see, they determined that the cost of any factor or resources was function of a supply and demand. So factors that were in great supply, जो factors हैं, आपके पास land है, चाहे आपके पास labor है, so जो भी factor आपके पास great supply में है, relative to the demand would be cheaper. So factors that were in great supply relative to demand would be cheaper. Factors in great demand relative to supply would be more expensive. Obviously, जो factor आपके पास ज़्यादा supply में है, उसको use करिए. So their theory, also called the factor proportion theory, stated that countries would produce and export goods that are required resources or factors that were in great supply. So जैसे हम कहते हैं इंडिया चाइना में लेबर बहुत है. So for example, India, China are home to cheap and large pool of labor. Therefore, these countries have become optimal location for labor intensive industries like textile and garments. So ये इन्होंने कहा था फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी में. So जो भी आपका प्रोडक्शन होना चाहिए, it should be on the basis of the amount of factors you have. So जिन फैक्टर की एक्सेस में सप्लाई है, आप वो वाले प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करिए. तो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी. So this was all your Elie Heckscher and Bertil Ohlin theory. एंड इसमें मेन फोकस यही है, जो भी आपके पास फैक्टर्स हैं उनको आप एक्सेस सप्लाई में जो है वो वाले प्रोडक्ट्स आपने प्रोड्यूस करने हैं. अब लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म आता है, दैट इज लियोनटिफ पैराडॉक्स. अब लेकिन क्या हुआ कि ये आपके अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे. So 1950 में Leontief studied US economy closely and noted that United States was abundant in capital, therefore should export more capital intensive good. So as per previous theory, factor endowment theory से अगर बोले, so अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा कैपिटल है तो उसका मतलब उसको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए. सो यही इन्होंने ऑब्जर्व करा लियोनटिफ ने, कि इन्होंने देखा कि यूएस में अबंडेंट कैपिटल थी, सो इट शुड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स. लेकिन however his research using actual data showed the opposite. United States was actually importing more capital intensive good. So rather than exporting, it was importing capital intensive good. So according to factor proportion theory, United States should have been importing labor intensive goods, but instead it was actually exporting it. So जो उसको वो एक्सपोर्ट करना चाहिए था उसको वो इम्पोर्ट कर रही थी यूएसए, एंड जो इम्पोर्ट करना चाहिए था इट वाज एक्सपोर्टिंग. So his analysis became known as Leontief paradox. इसको हम कहते हैं Leontief paradox because it was reverse of what was expected by factor proportion theory.
सो इसलिए जब हमारे पास ये पैराडॉक्स भी हमने देखा तो इस वजह से यू कैन से कि इंटरनेशनल ट्रेड इज वेरी कॉम्प्लेक्स. सो आप एक थ्योरी के बेसिस पे यू कैन नॉट एक्सप्लेन इंटरनेशनल ट्रेड. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, द पर्पस ऑफ दिस थ्योरी इज टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल ट्रेड. Why international trade? Why countries enter into international trade? So it is not that easy to understand, and it is a complex thing, and trade cannot be explained neatly by only single theory. So more importantly, our understanding of international trade theories continues to evolve. So there are new theories coming up. So ये अभी तक हमने जो theories पढ़ी, पहले हमने थ्योरी ऑफ मैकेंटिज्म पढ़ा है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, फिर थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, देन हमने फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी पढ़ा. देन उसके बाद इतना पढ़ने के बाद भी वी फॉट सम वी हैव सीन सम पैराडॉक्स. सो we can conclude that international trade is a complex thing, and one theory, through the help of one theory you cannot explain international trade. So next हम बात करते हैं कुछ मॉडर्न थ्योरीज की. सो जनरली जो अभी तक थ्योरीज हमने पढ़ी हैं, चारों थ्योरीज, दैट वाज कंट्री स्पेसिफिक. अब हम फर्म बेस्ड ट्रेड थ्योरीज पे बात करेंगे, जिनको हम मॉडर्न थ्योरीज भी कहते हैं. प्रीवियस थ्योरी को आप क्लासिकल थ्योरीज से भी नेम दे सकते हैं, क्लासिकल थ्योरीज. अब ये है मॉडर्न थ्योरीज. सो मॉडर्न थ्योरीज में जनरली हम बात करें, सो जनरली ये वाज डेवलप्ड बाय बिजनेस स्कूल प्रोफेसर्स. सो जनरली आप देखेंगे बहुत सारे हार्वर्ड प्रोफेसर थे जिन्होंने मॉडर्न थ्योरी, दो तीन थ्योरीज आप देखेंगे मॉडर्न थ्योरीज, जो इट हैज बीन गिवन बाय हार्वर्ड स्कूल. जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है उनके प्रोफेसर ने. एंड द फर्म बेस्ड थ्योरीज हम इसे कहते हैं, इवॉल्व विद द ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी. सो जितना जब से मल्टी एमएनसी कल्चर आया है, आपको पता है जैसे एमएनसी मतलब अपार्ट फ्रॉम जस्ट डूइंग ट्रेड, दे आल्सो इन्वेस्ट, और दे आल्सो स्टार्ट देयर प्लांट इन द होस्ट कंट्री. सो जब से एमएनसी का इंक्रीज हुआ है नंबर, देन न्यू थ्योरीज हमारी इवॉल्व हुई है, मॉडर्न थ्योरीज जिसको हम कहते हैं फर्म बेस्ड ट्रेड थ्योरीज. So the country-based theories could not adequately address the expansion of either MNC, जो previous theories हैं country-based theories, and intra-industry trade होता है. So intra-industry trade भी बहुत increase हो गया है. जो कुछ हम डिकेड्स में अगर देखें, इंटर इंडस्ट्री ट्रेड भी हो गया. और इंटर इंडस्ट्री ट्रेड क्या है? विच रिफर्स टू ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ गुड्स प्रोड्यूसिंग इन द सेम इंडस्ट्री. सो जैसे फॉर एग्जांपल, Japan exports Toyota vehicle to Germany and import Mercedes-Benz automobiles from Germany. So same industry, automobile industry, but Japan is exporting one car and it is importing another car from Germany. So that is called your intra-industry trade. So the more culture of MNC, more intra-industry trade. So these new theories have come up. And unlike the country-based theories, the firm-based theories, the new theories हैं, incorporate other product and service factors, including इसमें brand, customer loyalty, technology, quality, इसको ज़्यादा importance भी देते हैं. So first theory is country similarity theory. So it is given by Swedish economist, that is Stefan Linder. So 1961 में उन्होंने दी थी, as he tried to explain the concept of intra-industry trade. सो इस थ्योरी की हेल्प से उन्होंने इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड को एक्सप्लेन करा. एंड लिंडर्स थ्योरी प्रपोज्ड दैट कंज्यूमर इन कंट्रीज दैट आर इन सेम और सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वुड हैव सिमिलर प्रेफरेंसेस. सो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस जो रहेंगी, अगर हम सेम इंडस्ट्री की बात करें और जो कंट्री सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, सो वहां पर कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस सेम रहती है. सो अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस सेम है, सो उस जो कोई भी कंपनी है, उसको हेल्प होगी जब वो इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर करेगी, क्योंकि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस सेम है. सो उनका जो प्रोडक्ट है वो इजीली दे कैन सेल दैट प्रोडक्ट. So in this firm-based theory, Linder suggested that companies first produce for domestic consumption. When they explore exporting, the companies often find that markets that look similar to their domestic one. So डोमेस्टिक कंजप्शन जब उन्होंने अचीव कर लिया, उसके बाद वो मार्केट जो एक्सप्लोर करते हैं वो जनरली उन कंट्रीज में जाते हैं जहां पर सेम स्ट्रक्चर है और जो सेम डेवलपमेंट स्टेज में है कंट्री. सो सेम मतलब उसमें सिमिलैरिटी है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. So Linder country similarity theory then state that most trade in manufactured goods
will be between countries with similar per capita income, and intra-industry trade will be common. So this theory is often most useful in understanding trade in goods where brand names and product reputation are important factors in the buyer decision making and purchasing process. So स्टीफन लेंडर की जो कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी थी, इसने एक अटेम्प्ट था टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड. इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्या है? जब हम सेम सेक्टर में जब ट्रेड होता है बिटवीन द कंट्रीज एंड जो सेम स्टेज पे रहती हैं कंट्रीज जनरली. जैसे हमने बताया था कि जापान टोयोटा कार्स को जर्मनी एक्सपोर्ट करता है एंड वहां से मर्सिडीज बेंज को इंपोर्ट करता है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड. सो फर्स्ट जो हम मॉडर्न थ्योरी की बात करें वो है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय स्टीफन लेंडर. सेकंड इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी. सो बाय द नेम इटसेल्फ आप इसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं. सो इट वाज गिवन बाय रेमंड वर्नन, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर. So developed the product life cycle theory in 1960. The theory originating in the field of marketing stated that a product life cycle has three distinct stages. पहले new product होगा, then maturing product, then standardized product. So in 1960, this was a useful theory to explain the manufacturing success of the United States. So US manufacturing was the global dominant producer in many industries after World War II. इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सो आप जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, सो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है. सो इट हैज आल्सो बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ द पर्सनल कंप्यूटर वेंट थ्रू इट्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सो पर्सनल कंप्यूटर वाज इनिशियली न्यू प्रोडक्ट 1970s में, देन डेवलप्ड इनटू मैच्योर प्रोडक्ट 1980s एंड 1990s में, एंड टुडे पीसी जो है एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है और एक स्टैंडर्डाइज्ड स्टेज प्रोडक्ट स्टेज है, एंड द मेजॉरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन process is done in low cost countries, Asia and Mexico. So product life cycle theory जो generally बताती है कि कोई भी product होगा that would be in 3 stages. So उसके जो stages रहेंगे that is new product, maturing product and standardized product. So this was the second modern theory, you can say, modern trade theory. Then we have global strategic rivalry theory. So this was, it was based on the work of economist Paul Krugman and Kelvin Lancaster. So this theory focused on, इसका main focus MNCs पे था, multinational corporations, and their effort to gain a competitive advantage against other global firms in their industry. So firms will encounter global competition in their industry, and in order to prosper, they must develop competitive advantage. So that is एक strategy होनी चाहिए आपके पास किसी भी MNC के पास. So critical ways that firm can obtain a sustainable competitive advantage are barriers to entry for that industry. So these are some of the you can say ways, different ways to achieve the competitive advantage. So you can say barriers to entry. अगर बहुत सारे आप बैरियर सेटअप कर देते हैं किसी भी कंपनी के लिए एंटर करने के लिए उस इंडस्ट्री में, सो दैट वुड बी योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो जैसे बैरियर की बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो कोई भी नई कंपनी है उसके लिए इतना इजी नहीं होता है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वन ऑफ द बैरियर. सो ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट इज ऑल्सो अ बैरियर. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, it is not easy for a company to to get the economies of scale easily. Then unique business process or method, as well as extensive experience in the industry, and the control of resources or favorable access to raw material. So these are some of the barriers to entry that corporation may seek to optimize. The barriers to entry refers to obstacle a new firm may face when trying to enter into an industry or new market. So that ये जो barriers to entry हैं that serve as competitive advantage for any company. So global strategic rivalry theory, this was the third modern theory, and now the last modern theory की अगर हम बात करें, so that was Michael E. Porter की theory है, that is national competitive advantage theory. So Michael E. Porter was also a Harvard Business School professor, and he developed a new model so to explain नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कोई भी नेशन अगर है उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है तो क्यों होती है, सो वो इन्होंने पॉटर ने एक्सप्लेन करा था. सो पॉटर थ्योरी स्टेटेड दैट द नेशन कॉम्पिटिटिवनेस इन एनी इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन
the capacity of the industry to innovate and upgrade. So इन्होंने 4 determinants बोले थे किसी भी नेशन के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए, और वो 4 determinants थे लोकल मार्केट रिसोर्सेज. मार्केट रिसोर्सेज क्या है? लोकल मार्केट डिमांड कैसी है? बहुत अच्छी डिमांड है. अगर लोकल सप्लायर्स कैसे हैं, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज हैं. और उसके बाद लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं लोकल फर्म्स की. सो ये इन्होंने 4 फैक्टर दिए थे, 4 डिटर्मिनेंट, जिसके बेसिस पे नेशन की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिटरमाइन होती है. सो लोकल मार्केट रिसोर्सेज की बात करें, सो जो भी आपके पास लोकल रिसोर्सेज होने चाहिए उसके बारे में उसको बोला इन्होंने इम्पोर्टेंस है दैट इट बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोकल मार्केट रिसोर्सेज, जिसमें आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज अपार्ट फ्रॉम इन्होंने ऐड कर दिए थे कुछ एडवांस फैक्टर्स भी, जैसे स्किल लेबर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दीज आर योर लोकल मार्केट रिसोर्सेज. सेकेंड वॉज लोकल मार्केट डिमांड कंडीशन. सो आपकी जो डिमांड होनी चाहिए लोकल, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए, that is बहुत demanding होनी चाहिए. So Porter believed that a sophisticated home market is critical to ensuring ongoing innovation, thereby creating a sustainable competitive advantage. Companies whose domestic market are sophisticated, trend-setting, and demanding forces continuous innovation and the development of new products and technologies. So local market जो होनी चाहिए आपकी बहुत ही मतलब सोफिस्टिकेटेड, ट्रेंड सेटिंग, डिमांडिंग होनी चाहिए. लोकल आपका मार्केट रिसोर्सेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम लोकल रिसोर्सेज आपके पास एडवांस फैक्टर्स भी होने चाहिए, जैसे स्किल्ड लेबर आपके पास होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर. फोर्थ जो आपका थर्ड था, लोकल सप्लायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज. सो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट सपोर्टिंग रिलेटेड इंडस्ट्री होनी चाहिए, जो आपके पास सप्लायर्स हैं, जो आपके एसोसिएशंस हैं, जो वहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब बहुत इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. तो लोकल सप्लायर एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री. एंड लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड फर्म की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर होना चाहिए, एंड इंडस्ट्री राइवलरी. लोकल स्ट्रैटेजी अफेक्ट्स अ फर्म कॉम्पिटिटिवनेस. सो ये आपके 4 फैक्टर्स थे, जो 4 डिटर्मिनेंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी नेशन की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे. इसलिए इसका नाम दिया गया है पोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी. सो these were the 4 factors: local market resources, local firm characteristics, local supplier and complementary industry, and local market demand. सो जनरली जो हमने थ्योरीज पढ़ी हैं, जैसे हमने पहले क्लासिकल थ्योरीज पढ़ी, सो जो कंट्री बेस्ड थ्योरीज हम इसको कहते हैं, थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, फिर कंपैरेटिव एडवांटेज, एंड फिर हेक्सर-ओलियन, जिसको हम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी कहते हैं. एंड इसके बाद हमने एक लियोनटिफ पैराडॉक्स पढ़ा था, जो हेक्सर-ओलियन के अपोजिट जो ऑब्जर्व करा था लियोनटिफ ने. एंड देन हमने मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज पढ़ी हैं, जिसमें हमने कंट्री सिमिलैरिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, देन ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी, जिसमें हमने बैरियर्स टू एंट्री बैरियर्स जो हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, जैसे एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होता है प्रोडक्ट का. कंट्री सिमिलैरिटी जो आपका इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड को एक्सप्लेन करता है. एंड पोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसमें 4 डिटर्मिनेंट्स पोर्टर ने दिए थे किसी भी नेशन के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को चेक करने के लिए. सो इस थ्योरीज की बात करें तो हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, सो दैट इज ऑल under theories. And for today it is all. Thank you so much.